Hello, good morning, students. Today is 7 December 2020, and today we will start our next chapter, that is Lifeline of National Economy. Chapter Lifeline of National Economy. National Economy. So beta, your chapter name is Lifeline of National Economy. In this chapter, we will study which things are the basic factors of the national economy. Okay, national economy beta, as you know that about the national economy, it means nation economy. You know about the GDP ना बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो आपकी जो नेशनल इकोनॉमी होती है, कैसे हम उसको कैसे करते हैं, मेजर करते हैं जीडीपी से, जीडीपी से. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो क्या होता है आपका, जीडीपी क्या होता है बेटा, जितने भी आपकी कंट्री में क्या होते हैं, मतलब फाइनल गुड्स होती हैं. फाइनल गुड्स की जो फाइनल वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना. तो आपकी क्या निकल के आती है, जीडीपी. तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या रीड आउट करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द basic point. We will study about the basic points for the national economy, that which factor are the basic factor for the improvement of the national economy. कि कौन से फैक्टर क्या है बेटा जो आपकी नेशनल इकोनॉमी होते हैं उसको क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं. गोट इट बेटा. जैसे कि यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैनी पॉइंट्स लाइक द ट्रांसपोर्ट. Transport is very important. Communication, international trade, tourism as a trade. In this chapter, we will discuss all these points because all these factors are the responsible for the national economy. Okay, as you know that trade is very important for the national economy because transport is the intermediator between the market and the owner, है ना बेटा. तो आपका क्या करता है, in this chapter we will study about the all these things, that one is transport, communication, international trade and tourism. Okay, these are the sources of our national economy. ओके, लाइफलाइन का मतलब बेटा क्या होता है, लाइफलाइन का मतलब होता है बेस. और नेशनल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी बेसिक चीजें हैं वो हम इस चैप्टर के में रीड आउट करेंगे. ठीक है. द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लाइक द रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट. दीज आर द sources of the transportation and the communication like railways, airways and waterways comes in your transportation, and the internet, cinema, television, radio, newspaper comes in your communication beta. Both things are very important for the economy of the nation. Got it beta? That all these things means beta transportation and the communication contributing to India's socio-economic progress by linking India with the world. ये आपकी क्या करती, जो बेटा ट्रांसपोर्ट है, लाइक यू कैन से एरोप्लेन कनेक्ट करता है किसको, आपकी टू कंट्रीज को. हम यूएसए में जा सकते हैं, हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं, है ना. और कम्युनिकेशन से क्या करते हैं, हम अपने रिलेशन मेक कर सकते हैं, है ना. जैसे आपका यूएसए में कोई है, या फिर हमारे अगर क्या पॉलिटिक्स की वे में हम बात करते हैं, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को अनदर कंट्री के साथ क्या करना है, रिलेशन मेक करने हैं, तो हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे,
ठीक है। तो कम्युनिकेशन किससे होता है? कम्युनिकेशन करने के कुछ सोर्सेज है लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एक्सेट्रा। Got it beta? Let's start our chapter. First point in our chapter, that is transport. Transport beta. It is the first source which play an important role in the national economy. Okay. Here firstly make a diagram, that is means of transport. Means of transport. There are three types of transport. First one is land, second one is water, third one is air. ये क्या है बेटा? आपके means of transport है. Okay. In the land means of transport you will study about the roadways. Next one is railways. Third one is pipelines. Got it beta? And in the water you will study inland, overseas, and third one is, that is your public undertaking. Got it beta? And in the airway beta, there are also many types like domestic airways जो आपकी स्टेट टू स्टेट क्या करता है, आप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल, जो आपको वन कंट्री को दूसरी कंट्री में क्या करता है, हेल्प करता है जाने में. ठीक है. इंटरनेशनल एयरवेज. जो बेटा आपका डोमेस्टिक एयरवेज होता है वो क्या होता है, आपके स्टेट टू स्टेट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना. और जो आपका इंटरनेशनल एयरवेज होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल एयरवेज आपको कंट्री टू कंट्री क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस करता है. इनके अंडर भी आपको टू टाइप्स के मिलेंगे. फर्स्ट वन इज प्राइवेट एंड नेक्स्ट वन इज पब्लिक. प्राइवेट, नेक्स्ट वन इज पब्लिक, है ना. जो पब्लिक क्या होते हैं, पब्लिक एयरवेज क्या होते हैं, या पब्लिक एयरलाइंस, जो आपको मतलब गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं. ठीक है. और जिसमें रूल रेगुलेशन किसका बेटा फॉलो होता है, इन द पब्लिक एयरलाइंस जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है वही यहाँ पे फॉलो करना होता है. प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट में किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाता है. Got it beta? Let's start. Clear to everyone, means of the transport. There are three types of the means transport. First one is land, जो आपके लैंड पे क्या करते हैं, आपके रन करते हैं. ठीक है. वाटर, जो आपके सी ओशंस जो हमारे होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे शिप होती है ना बेटा, और क्लियर, शिप होती है, जहाज होता है, वो सारा क्या है आपका वाटर में मिलेगा. एयर में एरोप्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो आपको मिलेंगे. Here beta, the movement of goods and service from supply location to demand location is termed as transportation. Here beta, as you know that trade is very important for the economy of एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के लिए क्या है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन हियर, ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या है, अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चर होता है दिल्ली में, कहाँ होता है बेटा, अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चर होता है दिल्ली में, लेकिन उसकी मार्केट कहाँ है, आपकी मार्केट है उसकी हैदराबाद, हरियाणा या किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं. हम यहाँ पे ले रहे हैं मुंबई की. ठीक है. तो अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज को किसी प्रोडक्ट थिंग्स को बनाते हैं तो उसको किस लिए बनाते हैं, सेल करने के लिए, प्रॉफिट के लिए ना. लेकिन वो कहाँ जाके सेल होगा, मुंबई में.
ठीक है। तो उसको दिल्ली से मुंबई तक पहुंचाने के लिए क्या किस चीज की नीड होती है बेटा, ट्रांसपोर्ट की ना, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यू कैन गिव द अनदर एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कि क्या है कि यहाँ पे अगर दिल्ली में किसी चीज का क्या होना है बेटा, मैन्युफैक्चर होना है, किसी चीज का मैन्युफैक्चर होना है और उसका रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है, आपके डेक्कन प्लेट्यू वाले एरियाज में। डेक्कन प्लेट्यू वाले एरियाज में क्या करना है, उसका रॉ मटेरियल आपको मिलना है। तो पहले रॉ मटेरियल कहाँ से, डेक्कन प्लेट्यूज एरिया से कहाँ जाएगा, दिल्ली। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। क्या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। हेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहां से जो आपकी गुड्स होती है, द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लाई लोकेशन, यहां से क्या होगा, सप्लाई होंगी, ठीक है। डिमांड कहाँ है, मुंबई में। तो मुंबई में द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, ये क्या है, सप्लाई लोकेशन है, ये आपकी यहाँ पे क्या है, डिमांड है, मार्केट है। तो ये जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसपोर्टेशन। Got it beta? That is called your transportation. And the efficient means of transportation is a necessary condition for fast development of a country. There are different means of transportation through which movement of these goods and services done over three important domains of the earth, like the water, land and air. We already discussed about all these three. ठीक है। इन द ट्रांसपोर्टेशन फर्स्टली वी विल फर्स्टली इन द ट्रांसपोर्टेशन वी विल स्टडी अबाउट द रेलवेज बेटा। बिफोर द रेलवेज वी विल स्टडी अबाउट द रोडवेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हियर वी विल स्टडी अबाउट द रोडवेज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या, लैंड के बारे में रीड आउट करेंगे। Got it beta? India has one of the largest road network in the world, which is about 54.7 लाख किलोमीटर। जो आपका टोटल रोडवेज है, जो आपका टोटल रोड्स है वो कितना है बेटा, 54.7 लाख किलोमीटर। Got it बेटा? And in road transport is growing in importance as compared to the railways become of the following reasons. There are many reasons. That's why the land transportation is very important. There are many attractions in the land transportation. Okay, let's start. We will discuss why the roadways and the land transport is very good for us. Okay, first one is that is construction cost of roads is much lower as compared to रेलवे लाइन्स। जो आपका रोड है बेटा, इन द रोडवेज वी विल डिस्कस अबाउट द रोड्स, मतलब जो आपके ये होते हैं ना बेटा, बसेस वगैरह, टैक्सी वगैरह, ठीक है, वो हम रोडवेज में रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है कि क्यों आज के टाइम में अट्रैक्टिव सोर्स हैं मूवमेंट करने के, क्या, रोडवेज, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज लाइन्स, कि रेलवेज की जो लाइन्स हम क्या करते हैं, बिछाते हैं, उनमें ज्यादा कॉस्ट आती है, खर्ची, ठीक है, वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि जब हम आपके रेलवेज को क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को बिछाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, रेलवेज जो होती है बेटा,
वो हर जगह रेलवेज की वो बिछानी पॉसिबल नहीं है, रेलवेज ट्रैक हर जगह बिछाने पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे रेलवेज लाइंस हम क्या नहीं कर सकते, बिछा नहीं सकते, पहुँचा नहीं सकते, वहाँ पे क्या है आपकी रोड्स फैसिलिटी बहुत अच्छी, मतलब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। दैट सेकंड पॉइंट इज roads can be built in uneven surface then uneven surface like hills and mountains। बेटा जो आपकी रेलवेज होती है, here you have to tell the good features of the roadways ना, तो you have to compare both things। तो हम यहाँ पे कंपेयर किसकी कर रहे हैं कि क्यों रोडवेज जो है, रोड्स हैं रेलवेज की कंपैरिजन में बेटर है। तो सेकंड यहाँ पे क्या है, रोड्स कैन बी बिल्ड इन अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस, इवन सरफेस होता है बेटा जिसका प्लेन सरफेस हो। ठीक है, जैसे कि आपका प्लेन एरिया है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो आपका एरिया है वो प्लेन है। ठीक है, लेकिन जो रोड्स हैं वो क्या किए जा सकते हैं, हिली एरियाज में भी बनाए जा सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन जो रेलवे ट्रैक होता है उसको हिली एरिया में बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और सेकंड थिंग जो आपकी ट्रेन होती है, ट्रेन की जो लेंथ होती है तो वो भी अफेक्ट करती है किस चीज को, आपके ट्रेन ट्रैक को। कैसे बेटा कि एक ट्रेन के अगर क्या है 10 आपके उसके बॉक्सेस है, अब बेटा ये इतनी लंबी आपकी ट्रेन है, अगर यहाँ से आपका जैसे हिली एरियाज में तो ये स्लोप्स बेटा आते रहते हैं ना, क्योंकि वहाँ का क्या है प्लेन सरफेस नहीं है। तो इतनी लंबी ट्रेन, एक कार है वो क्या कर सकती है, वो इजीली क्या कर सकती है, वहां पे हम उसको मूव करा सकते हैं। लेकिन इतने लंबी ट्रेन को वहां पे हम मूव नहीं करा सकते क्योंकि स्लोप्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। ठीक है, तो सेकंड इसका बेनिफिट क्या है रोडवेज का, कि रोड इजीली हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, रोड्स वी कैन इजीली बिल्ड इन अ हिली एरियाज। Here you can also say that road can be built over higher slope and can transcend या क्रॉस mountains such as the Himalaya। जो बेटा आपके जो हिली एरियाज हैं आपने वहां पे देखा है ना कि ट्रांस फैसिलिटी बहुत कम होती है, ट्रांस सर्विस बहुत कम होती है, इसकी रेलवे सर्विस बहुत कम होती है। अगर बेटा होती भी है तो वो रेल जो होती है वो अलग, मतलब वो उनको सिर्फ हिली एरियाज के लिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत कम होती है और हम टूरिस्ट के लिए उसको बनाते हैं सर। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली economical in transportation of few person and relatively smaller amount of goods over short distance। अब बेटा क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन। जैसे कि आपकी ट्रेन है, अगर हम 10 बॉक्सेस वाली ट्रेन क्या करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें अगर उस रूट के सिर्फ 5 to 10 पैसेंजर हैं आने जाने के लिए, तो कुछ बेनिफिट है उस चीज़ का,
नो। लेकिन जो बेटा आपका रोड ट्रांसपोर्ट होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे कार, टैक्सी, उसमें वो 2 और 3 पर्सन को भी हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है, क्लियर। एक जो 2 व्हीलर होता है बेटा रोड्स के थ्रू, हम यहाँ रोड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रोड्स के थ्रू 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के या किसी भी कॉर्नर में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत क्या होता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोडवेज। नेक्स्ट वन इज बेटा रोड ट्रांसपोर्ट लिंक other modes of transport like between railways, station, air and seaports, Got it बेटा? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका ये क्या है, ये आपका घर है, इट इज योर हाउस, ठीक है। इसके 6 to 7 किलोमीटर डिस्टेंस में, यहाँ पे आप 6 किलोमीटर ले सकते हो डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एयरवेज के थ्रू दूसरी कंट्री में जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर से आप एयरपोर्ट तक कैसे जाओगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ द रोडवेज ना, या टैक्सी, कार, बाइक, स्कूटर, इन्हीं की हेल्प लोगे ना बेटा। तो वो भी क्या करता है, रोडवेज में आपका आएगा, ठीक है। रोडवेज में आएगा मतलब रोड ट्रांसपोर्ट लिंक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है बेटा, जो आपकी एयर ट्रांसपोर्ट होता है या फिर सी ट्रांसपोर्ट होता है, उनसे क्या करता है, लिंक करता है। क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपकी कौन से सी पोर्ट, तो बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ओशियन थोड़ी ना है, सी थोड़ी ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ना ही हम यहाँ से यहाँ तक किसी एयरवे के थ्रू आ सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक स्कूटर के थ्रू आ सकते हैं, अपनी बाइक के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो वो किस में आएंगे, आपके रोड ट्रांसपोर्ट में। गॉट इट? जो रोड के ऊपर चलते हैं दैट आर योर रोड ट्रांसपोर्ट बेटा, ठीक है। बस हो गया, टैक्सी हो गया, आपका कोई भी व्हीकल्स, ठीक है, जो आप रोड पे क्या करते हो, रन कराते हो। गॉट इट बेटा? तो ये क्या है आपका, दीज आर द अट्रैक्शन इन द रोडवेज। गॉट इट बेटा? कि रोडवेज के क्या क्या अट्रैक्शन है एट प्रेजेंट, वाई द पीपल आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द रोडवेज। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स on the basis of capacity. Beta, it is very important topic for you, so please concentrate. Got it beta? तो बेटा फर्स्ट है, there are 6 type of roads. Okay, first one is golden quadrilateral, super highways. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बेटा क्या होते हैं, जो आपकी कंट्री को कनेक्ट करते हैं, कंप्लीट कंट्री को कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। लाइक this is an important road development project which has been launched by the government of India. These are 6-lane super highways which connect Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. They have the following corridors. बेटा जो आपके सुपर हाईवेज होते हैं, गोल्डन क्यों बोला गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्वाड्रिलेटरल्स बेटा
आपको पता है ना मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, जो आपके फोर्थ पार्ट होता है आपका सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे 2 कॉरिडोर्स। फर्स्ट वन इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। डोंट कंफ्यूज बेटा, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट वन इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। ये क्या करते हैं बेटा, जो आपका क्या है, आपका इंडिया का मैप है। यहाँ पे आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे आपका बिल्कुल नीचे वाले पार्ट्स में क्या है, कन्याकुमारी है ना, ये कन्याकुमारी। ये है आपका J&K। गोट इट बेटा। ये आपका क्या है, साउथ, ये नॉर्थ, ओके। और ये आपका क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स मीन्स बेटा ये आपका हो गया यहाँ पे आसाम एंड गुजरात। ये बेटा आपका क्या है, नॉर्थ में J&K जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में कन्याकुमारी है ना, और ईस्ट में आपका क्या है, आसाम, और वेस्ट में आपका क्या है, गुजरात। तो ये आपका क्या होता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या करते हैं, आपके नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करते हैं, गोट इट बेटा, और आपकी ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करते हैं, गोट इट। इट मीन्स 4 क्वाड्रिलेटरल बन गए ना आपकी कंट्री के, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, गोट इट बेटा। क्लियर अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर highways. Those highways connect the India. Yeah, you can say those highways connect the west to east and north to south. Got it बेटा। एंड यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड क्यों आई यूज, यू कैन अंडरस्टैंड। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4th पॉइंट ऑफ द सर्कल या 4th पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपका क्या है, ये 4th पॉइंट में आपका क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है इसको, गॉट इट। इससे आपको क्या होता है, कंप्लीट इंडिया में आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और ये 6 लेन्स होता है बेटा, 6 लाइनों वाला जो आपका रोड होता है, हाईवे होता है, वो आपका आता है इसमें, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दो सुपर हाईवेज इज टू शेयर टाइम एंड reduce distance between the allow mega cities in India। हम इनका बेटा बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो मोस्टली हमारे बाईपास, जैसे आप खुद के एग्जांपल ले सकते हो अपने नियर बाय का, हम बाईपास की बात करते हैं। अगर हमें यहाँ से कहाँ जाना हो, अगर आपको कहाँ जाना है, बहादुरगढ़ से नजफगढ़ जाना है, बहादुरगढ़ से कहाँ जाना है, नजफगढ़ जाना है बेटा, ठीक है। तो आप किसकी हेल्प लोगे, आप मेन रोड से जाओगे। मेन रोड का मतलब क्या है, एक मार्केट से रास्ता आपका पास आउट होता है, ठीक है। नजफगढ़ से जाने के लिए मार्केट से रास्ता पास आउट होता है, या फिर आप इस रास्ते पे आपको क्या मिलेगा, रश मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, बाईपास है, बाईपास से आप बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा रोड है, और यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नजफगढ़ जा सकते हो, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या है, क्या बाईपास, बाईपास क्या है, अब बहुत अच्छी क्वालिटी का रोड है, एंड सेकंड थिंग वहां पे आपको रश भी नहीं मिलेगा, और आप सिटी से आउट होकर क्या कर सकते हो, नजफगढ़ जा सकते हो इजीली। सेम थिंग यहाँ पे है बेटा। आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या है, अगर आपको यहाँ जम्मू से कन्याकुमारी तक जाना है, तो अगर आप सुपर हाईवेज की जगह किसी और हाईवे का या रोड का यूज करोगे, तो वहां पे आपको रश मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है, आपका डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, क्योंकि एक प्रॉपर आपको रूट मिल गया ना, कि हमें सिर्फ इस सीधे रोड पे हमें मूव करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस को कम करता है। सेकेंड थिंग, आपके टाइम को भी सेव करता है। कैसे टाइम को सेव करेगा, कि अगर आपको रश मिल जाता है तो आपका टाइम वहां पे क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन ये स्पेशली दीज रोड्स आर मेड फॉर द स्पेशली ट्रेड ओनली, ठीक है, या फिर
long distance. Got it beta? And you can say National Highways Authority of India. Write down beta, it is very important that National Highway Authority, National Highway Authority of India, NHAI, is the regulatory which implements these highways projects. Okay, it means the responsibility of the maintenance of these roads under which organization beta, under which department? NHAI, National Highway Authority of India. Got it beta? Till now, if any type of query to you in this chapter, then you can ask to me, you can comment. Got it beta?